Hi guys, welcome to our sports channel Cricket Caviar on a very, very disappointing, sad, Sad and depressing night disappointing. for Really, all Indian really cricket sad. fans, and I guess fans all over the world because everyone wanted to see India in the knockouts of World T20 final. I mean, I don't have any words to say. Like, क्या ही बोलूं मतलब on a big match, we failed again, and Kohli is again running for excuses कि we were outplayed 20 overs का bad cricket 20 minutes से अब 20 overs का bad cricket हो गया है तो this was mentioned by one of my friend कि पहले वो बोलता था कि 20 minutes of bad cricket now it's 40 overs of bad cricket like, considering the 20 overs of Pakistan match and so what do you have to say Kunal like what is your reaction to today's match? Absolutely. Dude, it's really pathetic stuff, dude. I mean, it would have been a different thing had we fought, had we played well, and then we lost. The team seemed undercooked. Everything from our strategies to what we are doing, how the players were playing, how we're executing our plans. It felt nobody was. I mean, we're not attacking the New Zealand batsmen to make them play, to make them get out. We were just defensive throughout, right? From our batting to our bowling. We are just not playing properly as a unit, bro. Matlab, it's disappointing to see this kind of performance from our team, a country of 1.5 billion now. We play the IPL, we play so much cricket around the world. We have so much hopes from our players. We have some of the best players in the world, and still we played really, really bad cricket. New Zealand winning by 8 wickets is not acceptable, not at all. हाँ वही यार हम कुणाल न्यूजीलैंड में जाके 5-0 सीरीज जीते इंडिया में इंग्लैंड को हराए जो कि बेस्ट T20 टीम था वर्ल्ड का हाँ आई मीन यार, इतना सब कुछ करके आईपीएल खेला यूएई में आईपीएल खेला सब कुछ प्रिपरेशन हो गया उसके बाद भी मतलब कि we just don't have a settled lineup. For me, Kunal, the problem is with the selection again. We don't have a settled lineup. We can't कि हाँ मस्ट विन मैच है वील गो विद दिस लाइनअप ऐसा कन्विक्शन नहीं है आज भी मतलब यार ईशान किशन को ओपन करने भेज दिया रोहित को डिमोट कर दिया नंबर 3 पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन दैट मूव लाइक ओपनिंग विद ईशान किशन एंड डिमोटिंग रोहित शर्मा टू नंबर 3 what is your reaction on that? that was very surprising, dude. Dude, maybe you can send KL Rahul later on. ये थोड़ा मतलब ज्यादा ही बड़ा रिस्क हो गया. I mean, Rohit Sharma is like out and out expert opener. He's supposed to open. Maybe KL should have come one down. Maybe KL should have come later on. It was odd. थिंक केएल राहुल को मे बी ड्रॉप कर देना चाहिए था बट वही है प्रैक्टिस गेम्स से वी गॉट डिसइल्यूजन्ड बाय द प्रैक्टिस गेम्स वहां पे उसने ऐसा खेल दिया कि भाई हमको लगा हाँ केएल राहुल इज अ मस्ट पिक एंड आई एम लाइक वेरी सैड कि एंड वही हम लोग ने अपने मैंने प्रीव्यू में बात किया था कुणाल तो आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द प्रीव्यू बट उसमें यही मैंने बोला था कि सैंटनर और सोधी के अगेंस्ट फेवरेबल मैचअप रहेगा लेफ्ट हैंडर्स जो कि पंत और जडेजा है हमारे लाइनअप में अब तो ईशान किशन भी आ गया था तो ही कुड हैव बीन हैड ही स्टेड लॉन्ग इनफ तो ही कुड हैव बीन अ गुड मैचअप लेकिन यार आई डोंट अंडरस्टैंड द राइट हैंड इज स्टार्टेड टेकिंग ओवर मतलब कि the right hand is Kohli and Rohit. They started, hitting Ish Sodhi and Santner. मतलब कि I don't understand the logic कि why the right handers have to go after him. यार आराम से सिंगल्स लेते हैं एटलीस्ट 140 रन तो बनाते और आज हम लोग ने कुछ 60 डॉट्स अराउंड खेले हैं T20 इनिंग्स में 60 डॉट बॉल्स खेले हैं आज हम लोग ने आई मीन सिंगल्स का तो हमारे पास वही नहीं है वी डोंट हैव अ आउटलेट Yeah. टू अब्सॉर्ब दैट प्रेशर जो कि एटलीस्ट कोहली धोनी Strategically, पहले करता था strategically, we were so outdone, right? I mean, they are playing left arm spinners, right? So obviously, matlab, they will trouble our right handers. Yeah, it was, पता नहीं. From the word go, things did not seem fine for us. Maybe Jasprit Bumrah played well, you can say, but otherwise, no. आई मीन उसको भी शुरू में ही 4 ओवर करवाना था पता नहीं जडेजा को क्यों दे दिया पावर प्ले में आई थिंक एटलीस्ट वी कुड हैव फॉट फॉर द विद द बॉल थोड़ा उनको 15-16 ओवर तक खींचते एटलीस्ट 16 ओवर तक क्या ही खींचते एटलीस्ट बट मतलब यार आई कैनॉट डाइजेस्ट दिस आई मीन इंडियन क्रिकेट
अभी कुछ सपोर्टर्स आ जाएंगे इंडियन क्रिकेट के, बोलेंगे दिस इज नॉट दैट बैड, कोहली और रवि शास्त्री ने बहुत कुछ किया है, बट यार इतना बड़ा हार, मतलब कि तुम बैक टू बैक लॉसेस तुमको आईसीसी वर्ल्ड, मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था। हाँ हाँ, बैक टू बैक बिग लॉसेस, कंप्लीटली आउटप्लेड। और टू बी ऑनेस्ट वैसे हाँ, these guys have not won any trophies। और अभी तो यार हम लोग तो पता नहीं, विल बी हैप्पी इफ वी विन अगेंस्ट अफगानिस्तान आफ्टर दिस। यार इस मैच में तो कमबैक करना था, राइट? दिस वाज अ डू और डाई मैच। आई मीन आई थिंक दीज प्लेयर्स एंड न्यूजीलैंड यार इंडिया को हमेशा मतलब हर जगह इंडिया को हरा देती है यार, मतलब फॉर आई डोंट वांट टू यूज अनदर वर्ड, बट हरा देती है हर जगह, और वो भी बुरी तरह। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3 दिन में हरा दिया, टी20 में यार क्या 8 विकेट से जीत गए, वर्ल्ड बहुत कप बड़ा में। मार्जिन होता है यार, हाँ 14 ओवर और में जीत वर्ल्ड गए। 14 ओवर में जीत गए, वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में इतना बुरा हराया था, लाइक क्या मतलब आई हैव नो वर्ड्स। न्यूजीलैंड इज अ कंट्री ऑफ 5 मिलियन पीपल एंड उनका ऐसा टी20 लीग्स कोई खेलता भी नहीं है उनके टी20 लीग में। हमारा इतना बड़ा लीग है, आईपीएल है, एंड ये ट्रेंट बोल्ट और ये सब आते हैं हमारे यहाँ मतलब खेलने, एंड दे आर बीटिंग अस सो बैडली। मतलब आई डोंट नो, लाइक इफ आई गो, ठीक है मतलब यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट दिस, लाइक न्यूजीलैंड के बारे में यू वांट टू से समथिंग? Yeah, New Zealand were good. I mean, they were pretty good. They were playing well. They had their plans. Strategically, they were doing fine. Yeah, लेकिन दिक्कत वहां नहीं थी, ठीक है? दिक्कत थी कि यार we were under prepared, ठीक है? We did not play well. We took some really bad decisions, really bad moves, sent wrong plays at the wrong time. यार हमने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला यार, मतलब we are to blame for this more than New Zealand playing well. And like if you go मतलब by the innings, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक तो हम लोग जो बॉल्स, एक तो हम सिंगल्स नहीं ले रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप अपने आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, बाउंड्रीज आ नहीं रहा, सिंगल्स ड्राई अप हो गए हैं। फिर उसके बाद हम एकदम भी बिग शॉट्स के लिए जा रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम चौका कुछ ट्राई कर रहे हैं। इफ यू सी केन विलियमसन, ही हैज प्लेड विथ टच, मतलब इंटेलिजेंस के साथ खेला उसने। हम जा रहे हैं डायरेक्टली वो लॉन्ग बाउंड्रीज के लिए, एंड केएल राहुल, आई मीन यार हम इतने, ये लोग जिम में जाते हैं, आई डोंट नो क्या है, मतलब यार ये लोग तो बाउंड्रीज भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आई मीन एवरीवन गॉट कॉट इन एट द बाउंड्री। आई मीन क्या है यार, रोहित कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, एवरीवन गॉट कॉट एट द बाउंड्री। तो it was just good pressure building by New Zealand, and we could not you know lose that, we could not absorb that pressure well. I mean singles लेना चाहिए था, थोड़ा बाउंड्रीज या डबल्स लेना चाहिए था, बाउंड्रीज टच बाउंड्रीज लगाना चाहिए था, स्ट्रोक प्ले दिखाना चाहिए था, बट वो सब हम करें नहीं। हम तो सिर्फ बड़े हिट्स के लिए जा रहे थे और आउट हो रहे थे। आई डोंट नो, मतलब क्या बोलूं इस पर मैं। यार I mean, yeah, there is nothing left to say now, right? मतलब the way we lost to Pakistan, the way we lost to New Zealand, कुछ फाइट करके हारते, कुछ अच्छा क्रिकेट खेल के हारते, नहीं कुछ नहीं, हम तो बस इट्स लाइक हाँ, कोहली इज ऑन नोटिस पीरियड, राइट? कोहली एंड रवि शास्त्री, they're just chilling maybe। हाँ अब भाई, भाई मतलब आई थिंक and आई Kohli थिंक still saying we have to be optimistic and positive and take risks, घंटा। भाई अगर आह, इतना ही उसको लग रहा था अपने ऊपर डाउट, तो उसको वर्ल्ड कप के पहले ही छोड़ देना चाहिए। मतलब ये प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होता वर्ल्ड कप की, तुम भाई मतलब हम देखेंगे, हाँ ठीक है लास्ट वर्ल्ड कप है यार। अगर तुम्हें पता है कोहली इज नॉट अ गुड कैप्टन, जैसा उसने आज दिखा दिया 6 ओवर में जडेजा को बॉलिंग देके, थोड़ा जो प्रेशर बना था 5 ओवर्स में 30 था न्यूजीलैंड, एंड 30 फॉर 1 था, और 6 ओवर में 14 रन दे दिया जडेजा ने। तो आई थिंक इट्स प्रूवन कि कोहली इज नॉट अ गुड वाइट बॉल कैप्टन। रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल दोनों अलग अलग स्पोर्ट्स है मेरे लिए। रेड बॉल में ऋषभ पंत बहुत अच्छा प्लेयर है, व्हाइट बॉल में ही इज अ टोटल फेलियर। आई मीन ऋषभ पंत इज अ कंप्लीट व्हाइट हाँ बॉल यार, फेलियर। yeah, but it's आई time to थिंक raise उसका serious questions on Pant now, really। उसने actually कभी वनडे T20 में ऐसा कुछ किया नहीं, right? And कभी भी he नहीं, कभी is भी supposed to नहीं, be someone who एंड comes and attacks, right? Who scores runs, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, right? I mean, maybe you have to look beyond him now, maybe groom हाँ Ishan आई Kishan or थिंक someone else।
I think we should look beyond him. I mean, he looks really out of out of Pretty touch, out of और every place. time मतलब ऐसा लगता है he's struggling for that 100 strike rate. 100, 110, 120 के स्ट्राइक रेट के लिए वो स्ट्रगल करता रहता है. एक दो 106 दो तीन लग जाता है, बस उतना ही उसका है बस. उसके बाद लगता नहीं है कि he does not rotate strike या ऐसा कुछ भी नहीं है उसका, कि पावर गेम भी चला गया उसका. इट वैनिश्ड आफ्टर ही स्टार्टेड प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट. तो आई डोंट नो पंत का क्या है इसमें सीन अभी. Yeah, man. I don't really have much to say about the team now. But We do are you coming think back after the. Rahul Chair should have been given a chance here? Like we missed a leg spinner. Do you think that? Yeah, dude. We did miss a leg spinner, but I think Rahul Chahar was also not in form. I'm not sure who would you have फॉर्म से played क्या ही वहां होता पे. है भाई कुणाल. फॉर्म तो केएल राहुल का बहुत अच्छा था. फॉर्म से कुछ नहीं होता भाई. वो यार फॉर्म इज वेरी वेरी टेम्पररी इन टी20 क्रिकेट. टेस्ट में फिर भी मैं मानता हूँ, हाँ ठीक है, फॉर्म का Agreed. थोड़ा वैल्यू है, बट टी20 में तो One good thing was कि we took in Shardul Thakur in place of a really out of form Bhuvi. लेकिन हाँ मतलब you cannot expect a player to just come in and perform outright as well. नहीं. शार्दुल उसको तो का bowling जब बहुत तक लेट थी. बॉलिंग आया, शार्दुल का तो जब तक बॉलिंग आया तब तक मैच खत्म हो चुका था. तो शार्दुल से हाँ तुम मैच क्या खत्म ही हो चुका एक्सपेक्ट था. करोगे. एज अ बैट्समैन मुझको हाँ वो थोड़ा कुछ कर सकता था मे बी, बट वो भी बहुत लोअर डाउन द ऑर्डर आया, तो आई डोंट. 19th ओवर में आया था ना वो, बहुत लेट आया था वो भी. हम्म. बस बाकी बोल्ट वाज bowling pretty well यार, मतलब डेथ में as well बोल्ट was doing really well. हाँ वो आसिफ अली के सामने ही बस उसका गेम खराब होता है. वैसे इंडिया के सामने उसका गेम बहुत टॉप नॉच था. नॉट और जस्ट हर बोल्ट, आई बार ऐसा थिंक. होता है, हर बार बोल्ट आके इंडिया की मार लेता है, हर बार ऐसे एवरी टाइम ही गेट्स विकेट स्टार्टिंग में, एवरी टाइम ही डज गुड डेथ बॉलिंग, हमेशा इंडिया का रहता है बोल्ट का. हर फॉर्मेट में टेस्ट हो, हर फॉर्मेट में टी20 यार. हो, ओडीआई नॉट हो. नाउ. बट बोल्ट तो ठीक है. एडम मिल ने और टिम साउदी ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया मेरे हिसाब से. एंड ईश सोधी जो आज का मैन ऑफ द मैच है, ईश सोधी, इंदरदीप सिंह सोधी, हाँ. ही बॉल्ड रियली वेल. आई थिंक उसको अब इंडियन And plus स्क्वाड में he लाना has a really चाहिए. good he has a really good record against Indian top order, right? पहले भी उसने काफी विकेट्स लिए इंडिया के अगेंस्ट. And he 2016 continued on that टी20 form वर्ल्ड today. कप में उसने डिस्ट्रॉय किया था इंडिया को. 79 पे हाँ ऑल हाँ. आउट कर दिया था. Today also he got Rohit and Virat. कोहली, रोहित कोहली बोथ. Yeah. ही गॉट द बिग फिशेस एंड he enticed them. मतलब उसने बहुत ही अच्छा ग्राउंड डायमेंशंस और पिच के हिसाब से बहुत ही मतलब अच्छा बॉलिंग किया. रिस्ट स्पिनर डेफिनेटली मैं फील करता हूँ एक हर टीम में होना चाहिए डेफिनेटली. आइदर इट बी राहुल चहर और युजवेंद्र चहल को स्टार्टिंग में ही तुम नहीं लिए तो वो बहुत बड़ा गलती था. बट एटलीस्ट एक लेग स्पिनर रहना चाहिए, रिस्ट स्पिनर रहना चाहिए. बट ठीक है, इंडिया ने जहाँ पे डिफरेंट ट्राई करना चाहिए था वहां पे किया नहीं. मतलब जरूरत नहीं था रोहित को शफल करने का एंड ऑल. आई डोंट नो मतलब क्या था स्ट्रेटेजी, बट इट ऑल बैकफायर्ड. ठीक है, शायद बोल्ट के इन स्विंगर से यही डिफेंसिव माइंडेड हो जाते हैं हम लोग. एक मैच हार के बोल्ट के इन स्विंगर से बचना था हमें, और इसलिए ईशान किशन को ओपन करा दिया. तो नथिंग मच टू से देयर. सो वेरी सैड Yeah, नाइट. man. So आई मीन आई एम आउट ऑफ it's वर्ड्स really sad, एक्चुअली. dude. It's really it feels sad. It feels. I mean, I feel slightly tired now, bhai. Ki the way this team is playing and has been playing after the first game, पता नहीं, there's not much left to say now. Just utter disappointment. Do you see any changes? अब यार अब changes करके भी क्या फायदा? I think they should just come back now, भाई. अब तो हो तो गया अपना. भाई This World Cup is over for us. हाँ अब तो देख, वो है कि एक मैथमेटिकल चांस है जो अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराएगा तो मतलब दैट इज द लास्ट मैच ऑफ द ग्रुप स्टेज ऑन 7th of November. अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड. But even then, our run rate is pretty fucked up. So और रन रेट इज प्रीटी फक्ड अप. एंड अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराएगा तो एक्चुअली अफगानिस्तान कैन गो थ्रू. मतलब अगर अफगानिस्तान इंडिया को थोड़ा कम मार्जिन से हारता है इंडिया से, तो एक्चुअली अफगानिस्तान कैन क्वालिफाई एज द सेकंड टीम इंस्टेड ऑफ न्यूजीलैंड और इंडिया. सो आई डोंट नो, बहुत मुश्किल है आई थिंक अब तो. सो आई थिंक दिस इज इंडियाज फेयरवेल टू द टी20 वर्ल्ड कप, दिस मैच. it मैथमेटिकल pretty much चांसेस is. तो होंगे, बट डोंट नो.
Yeah, अभी for the स्कॉटलैंड और start of tournament, नामीबिया को I was like कि इंडिया का चांस नहीं है, ठीक है, I mean India is like does not look that good and stuff, but I was not expecting India to play this bad. That they have been really pathetic, bhai, really pathetic. लोविन में न्यूजीलैंड ने भाई दिखा दिया इंडिया को अपना ब्लैक जर्सी, हेलोवीन कॉस्ट्यूम फॉर ऑल इंडियंस एंड क्या बोलूं यार. सो आई थिंक वी शुड एंड द प्रोग्राम टुडे ऑन अ वेरी वेरी सैड नोट. Yeah, yeah. लेट्स होप कि एटलीस्ट नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कुछ नए फेसेस लाएं. आवेश खान, हर्षल पटेल, वेंकटेश अय्यर, संजू सैमसन एंड ऋतुराज गायकवाड़. कुछ नए लोगों को आई थिंक लाने का जरूरत है टीम में. आई थिंक एक्सपीरियंस से हम लोगों को कोई फायदा नहीं मिला. आई मीन बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, केएल राहुल, कोई विराट कोहली. आई गेस यार अब तो नोबडी. देख के लगने लगा कि the team is outdated, the strategies are outdated. uh, आई गेस अब रोहित शर्मा को कैप्टनसी मिलेगा T20 का, तो विथ हिम बीइंग कैप्टन ही शुड बैंक मोर ऑन यूथ प्लेयर्स. मतलब दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड. जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको बैंक करो, क्योंकि इनसे तो कुछ नहीं हो रहा. बॉलिंग फिर भी रख सकते हैं, बुमराह, शार्दुल ठाकुर एंड शामी के भी दिन चल खत्म हो गए अब यार T20 खेलने के. ही शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर टेस्ट हाँ, क्रिकेट. शामी हो गया उसका भी. yeah, I mean that will be good as well. Maybe his career will also be slightly elongated now to just think test cricket, but हाँ, expect a lot of changes in the future now. Let's see. अब तो T20 cricket anyway सारी teams बहुत seriously लेती हैं. So हाँ. we need to build a team. भाई. We need to build a team. ठीक है, हमने कभी T20 टीम build नहीं किया, ऐसा भी लगता है मुझे कभी बार. कभी build नहीं किया हमने. हम लोग वही वनडे वाली टीम उतार देते हैं यहाँ पे. हाँ, I get your point. We don't have a format specific team. Like T20 format specific team नहीं है. वही ऋषभ पंत साला टेस्ट मैच भी खेल रहा है, उसको ही तुम T20 भी खिला रहे हो. वही विराट कोहली है, वही रोहित शर्मा है, वही केएल राहुल है, वही बुमराह है. मतलब यार तुम्हारे कुछ तो चेंजेस होना चाहिए. T20 फॉर्मेट में तुम जा रहे हो, कुछ तो स्पेशल स्किल्स होगा. एक दो प्लेयर जैसे न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स में है, टिम साइफर्ट है, ये लोग कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते. ईश सोधी भी कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते. तो यार थोड़ा तो तुम्हें एक एटलीस्ट, आई एम नॉट टेलिंग कि तुम 100% नए प्लेयर्स को ले आओ, बट एटलीस्ट 50% ऑफ योर टीम शुड बी कस्टमाइज्ड टू अ फॉर्मेट. तो वो चीज हाँ भी वही नहीं है. बोल रहा था. इट्स अबाउट बिल्डिंग अ टीम भाई. हैव यू एवर फेल्ट कि हमने अलग से T20 में इन्वेस्ट किया है, T20 क्रिकेट के लिए अलग से टीम बनाई है, बिल्डअप करने की कोशिश की है. मतलब उस टाइप का कभी मुझे फील नहीं हुआ. हम लोग T20 इनफैक्ट काफी कम खेलते थे एक टाइम पे, T20 इंटरनेशनल्स. हम लोग आईपीएल ही करते रह जाते हैं यार. हम लोग जब तक टीम नहीं बनाएंगे तब तक मतलब हाउ विल वी परफॉर्म इन बिग टूर्नामेंट्स. 2007 में तो चलो इट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप फॉर एवरीवन, बट वी नीड टू बिल्ड अ टीम, राइट? बिल्ड अ चैंपियन टीम. वो वो ऐसे थोड़ी वो होता है. बेटर था. 2007 में हम जीते थे, तब आईपीएल नहीं था, तब T20. आई थिंक वी वेंट विद अ यंग टीम. एक्चुअली दैट इज द मंत्रा वी शुड फॉलो. मतलब एक यंग टीम के साथ जाना चाहिए एंड लेट देम प्ले फियरलेस प्रेशर फ्री क्रिकेट. तो दैट विल बी आई थिंक मोर हेल्पफुल. एंड कुणाल, आई हैव वन जैसे मोर इंग्लैंड पॉइंट. खेलती है. हाँ, इंग्लैंड जैसे खेलती है. इंग्लैंड का देख ले, टेस्ट टीम में लियाम लिविंगस्टोन कभी टेस्ट मैच खेलेगा क्या? नहीं खेलेगा. क्रिस जॉर्डन कभी टेस्ट मैच खेलेगा क्या? नहीं खेलेगा. तो व्हाई कांट वी हैव अ टीम लाइक दैट? आई मीन, anyway, Kunal, I want to ask you a serious question. Like, do you think Indian players should go and play foreign leagues? मतलब तू foreign leagues में देख ले, players आ ये रहे हैं जैसे कि ईश सोधी की अभी CPL में खेलता है. Then Shaheen Shah Afridi, Asif Ali, all the bright stars are coming from CPL. I know scheduling बहुत tough है and everything, but some of the players at least जो internationals नहीं खेलते हैं, at least they could go abroad and play CPL, maybe BBL. हाँ I यार, know वो पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, but मतलब at least BBL और CPL दो टूर्नामेंट्स जो बहुत अच्छे हैं. एंड 100, ये तीन टूर्नामेंट्स तो एटलीस्ट खेलना चाहिए. अभी एडम मिलने हैज कम आउट ऑफ द 100 विद सच अ गुड रिकॉर्ड इन द 100 एंड ही हैज आल्सो परफॉर्म टुडे. मतलब ऋषभ पंत का तो उसने मिडिल स्टंप ही आज उखाड़ दिया एडम मिलने ने. आई हाँ डोंट नो व्हाई मुंबई एंड वी इंडियंस. हैव गुड प्लेयर्स. We have good players coming out of all this, right? Just Liam Livingstone gained a lot of popularity because of the 100, right? Because of his form over there, and he's playing good even now. So if we need T20 specialists in the team, right? I think that हमें वो चाहिए. मतलब सिर्फ IPL खेल के नहीं होगा, right? जैसे तू पहले बोल रहा था कि बस
घर पे खेल के खुश रहते हैं. हमें I think we need that. We need our players to play internationally in other leagues, and that's where how will build really good T20 players will perform in such crunch games, such big games. Yeah. Okay, Kunal. So that's it from Cricket Caviar, and let's follow the tournament. And I'm supporting the Kiwis now, New Zealand. I hope they Okay. finish second in this group and go on to beat England and Pakistan. So I'm backing Kane Williamson and his team now. So Yeah, I know tu to they are England. pretty good. Yeah. I've always liked England, but yeah. Let's see. I mean, I hope we get to see some interesting games. पता नहीं, now it feels कि tournament थोड़ा monotonous type का भी हो रहा है. But hope we get to see some upsets, some interesting games. Like this week, there are no upsets, right? No upsets at all. एक दो तो हो जाए. No ups. यही एक था सबसे बड़ा अपसेट. न्यूजीलैंड और इंडिया. Cool then, guys. So ending on a really sad Okay, and guys, disappointing note. see you again. Yeah, in happier times we'll see you again. So bye.